Hello my dear students, this is the specimen paper number 8 and question number 1 based on MCQ. Okay. This is the continue from series 15. So, question number 1 is, if a dealer in Lucknow supply goods worth rupees 36,000 to another dealer in Kanpur with a rate of GST 18%, then SGST is rupees 6,480, rupees 3,240, C 0, D none. यानी ऐसे कंडीशंस में क्या है, दिस इज द कंडीशन ऑफ इंट्रा स्टेट सेल्स. इंट्रा स्टेट सेल्स मीन्स selling and manufacturing that is in the same state. So, Lucknow and Kanpur is in the same state, that is in UP. So, total rate of GST will divide into two equal parts, that is 9. So, SGST will be 36,000 into 9 upon 100. 0 cancel, से मल्टीप्लाई कर दो. 6 9 54, 5 9 3 27 और 5 32, 0 रख दीजिए. It means 3,240 is the right answer. So, right answer is B1. Okay. Second one, Miss Jyoti deposit rupees 1,200 per month for 2 years in a RD account. If the rate of interest is 12%, then find the total interest. This is based on the topic banking, that is recurring deposit, and we know that from the formula for the interest one, I equal to P into N, N plus 1 into R upon 2 into 12 into 100. Alright. So, according to question, P is 1,200, rate is 12%, time is 2 years, 24 month, 25 into rate 12 upon 2 into 12 into 100. 12 2 जा 24, कैंसिल, 0 कैंसिल. अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए. 12 into 12 into 25, ये आपका आ जाएगा 2,400. So, right answer is 2,400. Okay. Now, third one, the solution set for 2x plus 7 is less than 15, where x is a number of natural number, then what is the solution set? अगर इसको आप ट्रांसफर इधर करोगे, ये हो जाएगा 15 minus 7 8, 8 डिवाइड बाई 2, यानी x is less than 4, x is less than 4. तो इसमें से 4 से छोटा नेचुरल नंबर कौन होगा, यानी 1 2 3. सो राइट आंसर इज ए. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन. दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द टॉपिक quadratic equation, and according to the quadratic equation we know that the standard form for quadratic equation is ax square plus bx plus c equals to 0. Okay. And nature of the roots means you have to find the value for discriminant, that is equals to 0, less than 0 or greater than 0. There are 3 conditions for a discriminant one. So, according to question, A is 3, B is minus 2 under root 6 and C is 2. So, D equal to B square minus 4AC means minus 2 under root 6 whole square minus 4 into A into C. 2 2 ja 4, 4 6 ja 24, minus 4 3 is 12, 2 ja 24. This will equal to 0. So, this is the condition for discriminant is equal to 0, means root are real and equal. So, right answer is A. यानी ऐसे कंडीशंस में क्या है, आप टेस्ट करोगे D की वैल्यू क्या आ रही है. अगर D की वैल्यू 0 है, रूट्स रियल एंड इक्वल हो जाएगा, और अगर D की वैल्यू ग्रेटर होती तो रियल एंड अनइक्वल, और अगर इमेज 0 से छोटा होता यानी नेगेटिव होता तो इमेजिनरी लिखते. अब क्वेश्चन नंबर 5, द फोर्थ प्रोपोर्शन 2 5 10 20 इज अकॉर्डिंग टू द कंडीशन. दिस we know that if there are 3 numbers are given, then
fourth proportion one is A into D equal to B into C. So there according to question A, B, C is given. So find the value for D1, that is x. So 5 into x equal to 10 into 20. This is the condition for A into D equal to B into C. This is the case of proportion. यानी proportion के केस में हम जानते हैं अगर 4 नंबर आपके पास दिए हुए हैं तो A इंटू डी इक्वल टू बी इंटू सी होगा। तो यहाँ पे A, B, C तो गिवन है और D को मैंने लेट कर दिया है x, ठीक है। तो A इंटू डी इंटू 5 इंटू एक्स इज इक्वल टू दिस वन, 5 2 जा 10, so x is equal to 22 ja 40. Right answer is A. Next question number 6. When polynomial 3x cube plus 7x square plus x minus 1 is divided by x plus 2, then what is the remainder? आपको इसमें सेलेक्ट करना है कि रिमाइंडर क्या होगा। आप जानते हो कि अगर डिवाइज़र ऑलरेडी गिवन है तो उसको आप ज़ीरो कर लीजिए, जीरो की इक्वेट करेंगे, जो वैल्यू आएगी x की उसी को इसमें पुट कर देंगे। यहाँ पे डिवाइज़र क्या है हमारा x प्लस 2 है, तो यानी अगर इसको ज़ीरो करोगे तो x की वैल्यू -2 आएगी, तो यहाँ पे आप रख दीजिए 3 इंटू -2 होल क्यूब प्लस 7 इंटू -2 होल स्क्वायर प्लस -2 -1, ये हो जाएगा 8 3 जा 24 -24 प्लस 4 7 जा 28, ये प्लस हो जाएगा माइनस माइनस, ये हो जाएगा -3। अब ये देख लीजिए 24 और ये दोनों माइनस में है, ये आ गया तुम्हारा -27 प्लस 28 आना चाहिए इसमें कितना 1, क्योंकि 28 माइनस 27 इक्वल टू 1। सो राइट आंसर इज ए। दिस इज द क्वेश्चन टॉपिक फ्रॉम पॉलिनोमियल्स। ये क्वेश्चन आपका पॉलिनोमियल से दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स 3 इंटू 4 ऑर्डर इज गिवन, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू फॉर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। सो इजी, बहुत ही ईजी है। अगर आपको ऑर्डर दिया हुआ है दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, इतना ही एलिमेंट उसमें होंगे। तो 3 4 जा 12, राइट आंसर इज B1, क्योंकि इसमें 3 इंटू 4 का ऑर्डर दिया हुआ है, तो सीधा इसको मल्टीप्लाई करिए, जो आ जाएगा वही आपका नंबर ऑफ एलिमेंट होगा। ओके, सो आंसर इज 12 1। क्वेश्चन नंबर 8। इफ a इक्वल टू 2 - 1 4 0 देन 2a इज व्हाट। a की वैल्यू आपको a मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 इंटू 2, तो जो आंसर आएगा वो भी आएगा 2 इंटू 2। पूछ रहा है कि 2 से आपको मल्टीप्लाई करना है, यानी सिंपली नंबर से मल्टीप्लाई करना है स्केलर टाइप से। तो इसे 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 0 जा 0, यानी आंसर देखिए 2 2 जा 4, 2 1 जा -2, 2 4 जा 8 एंड 0। सो राइट आंसर इज ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। इफ x प्लस 2 y प्लस 3 9 4 इज इक्वल टू 6 5 9 4, then what is the value for x and y? According to this condition, you have to equate the value for a11 a11 के साथ, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। डिटेल के लिए मैट्रिसेस के बहुत सारे वीडियो अपलोड है, आप उसके थ्रू जाइए। यहाँ पे मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि a11 को a11 के साथ इक्वेट करोगे, यानी x प्लस 2 इक्वल्स टू 6, देन x इज इक्वल टू 6 माइनस 2, यानी कि a की वैल्यू हो जाएगी 4, और y प्लस 3 इज इक्वल टू 5, y की वैल्यू हो जाएगी 5 माइनस 3, यानी कि 2। सो राइट आंसर इज 4 2, क्योंकि x प्लस 2 इक्वल टू जब 6 करोगे तो 2 को ट्रांसफर करोगे तो 6 माइनस 2 हो जाएगा, और यहाँ पे करोगे y प्लस 3 इक्वल्स टू 5, so y is equal to 5 minus 3, so right answer is 4 2। if tn terms of an AP is given 4n plus 2, then find the value for t9। देखिए ऐसे क्वेश्चंस के लिए क्या करेंगे, n की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है कि t9 हमको चाहिए और tn टर्म दिया हुआ है, डायरेक्ट आप n के जगह पर रख दीजिए 9, 9 4 जा 36 प्लस 2 38, यानी राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्योंकि tn टर्म क्या होता है, tn टर्म इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और ऑलरेडी अगर tn टर्म दिया हमको सीरीज फाइंड करना है, देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू फॉर n इक्वल टू 1 2 3, तो सीरीज आ जाएगा। आप वैसे भी निकाल सकते हैं और डायरेक्ट t9 की वैल्यू भी यहाँ रख दीजिए,
9 4 जा 36 प्लस 2 38 और राइट आंसर आपका 38 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, द रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट -4 -7 थ्रू ऑरिजिन। देखिए, अकॉर्डिंग टू द टॉपिक रिफ्लेक्शन वी नो दैट if there is a reflection through x axis then y will change, reflection through a y axis means x will change, and reflection through origin means both an x and y will change। इसके लिए डिटेल आपका वीडियो ऑलरेडी अपलोड है रिफ्लेक्शन से रिलेटेड, आप उसमें डिटेल जा सकते हो। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर ओरिजिन के थ्रू है तो दोनों ही चेंज हो जाएंगे, आंसर हो जाएगा 4 और 7, यानी 4 7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, the angle in a semicircle, semicircle means when there is a circle 1 and there is a diameter 1, so this is a semicircle। और हम जानते हैं कि सेमीसर्कल जो है हमेशा कितने का होगा, राइट एंगल। तो इसमें देख लीजिए, पहला है एक्यूट, दूसरा है राइट, तीसरा ऑब्ट्यूज, चौथा है नन, तो राइट यानी बी आंसर हो जाएगा। ऑलवेज सेमीसर्कल एंगल हमेशा 90 ही बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, the slope of a line which makes an angle of 30 degree with positive direction of x axis। याद रखिए कि जो भी वैल्यू दिया है उसका tan याद रखना है, यानी tan 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्लोप के लिए tan थीटा का ही वैल्यू लेते हैं स्लोप के लिए, तो tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। सो राइट आंसर इज B1 यानी 1/√3। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, इन द गिवन फिगर P and PB are tangent to a circle with center O। इसका सेंटर O है और कह रहा है PA is equal to 9 centimeter, this is given as 9, and angle APB is given as 60 degree। The length of tangent PA is given, what is the length of PB, this is PB। okay, so according to the condition we know that there is a point that is outside from the circle 1, then length of the tangent will be equal, so length of PA and PB is equal, so right answer is 9। okay, sec theta into cosec into cot theta is equal to what? Sec means 1 by cos, cosec means 1 by sin, and cot means cos by sin। so cos cancel, 1/sin square theta, 1/sin square theta means अगर साइन को ऊपर ले जाते तो कॉसेक अगर इसमें से कोई होता तो होता, अदरवाइज इसका राइट आंसर हो जाएगा नन, क्योंकि 1/sin square थीटा तो कहीं है नहीं इसमें कोई भी ऑप्शन, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नन। ओके।